Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss next topic of unit 7 class 11th and that topic is Bernoulli's theorem. So this is the most important topic जो कि थोड़े एग्जाम दे अंदर बच्चे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस 70 to 80% आ. So Bernoulli's theorem बहुत ध्यान दे नाल बहुत केयरफुली समझना. सो बच्चे स्टार्ट करते हैं सब तो पहला डेफिनेशन तो इट स्टेट्स दैट कहते यह की कहता आ स्टेट करता दैट द सम ऑफ अ प्रैशर एनर्जी. सो पहले नंबर पर किहड़ी एनर्जी अप्लाई हो रही है प्रैशर एनर्जी. नंबर 2 इज़ अ काइनेटिक एनर्जी. बच्चे मैं के ई लिखिया तुसी फुल फॉर्म लिखना काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी तुसी फुल फॉर्म लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. सो बच्चे ध्यान नाल असीं की चीज़ लिखण लगे प्रैशर एनर्जी उन्होंने क्या प्रैशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट जिहड़ा कि हमेशा की होएगा कांस्टेंट होएगा. सो ये बर्नौलीज थ्योरम ने ये चीज़ नू एक्सप्लेन किया कि जिहड़ियां 3 एनर्जीज असी यूज़ करते हैं प्रैशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिवाइड करांगे टोटल मास ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਆਏਗੀ. ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਫਲੋ. ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਫਲੋ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ. ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਫਲੋ ਔਰ ਲੈਮਿਨਰ ਫਲੋ in fluid is defined as किसी भी fluid ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ as the flow in which the fluid flow in a parallel layers such that there is a no motion or intermixing of the layers and at the given point. ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਉਹ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲੇਅਰਸ ਸੇਮ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਪੈਰਲਲ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਘਟਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਮਿਕਸਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੇਅਰਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਲੇਅਰਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਫਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਮਿਨਰ ਫਲੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੇ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫਲੋ. ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲੋ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਰੈਗੂਲਰ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ. ਦ ਇਨਰੈਗੂਲਰ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫਲੋ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਟ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਫਲੋ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਫਲੋ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼. ਸੋ ਆਹ ਟਰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ. ਸੋ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ. ਕੰਸੀਡਰ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਫਿਊਲ ਕੰਸੀਡਰ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਫਿਊਲ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਵੇ FUEL ਆਈਡੀਅਲ ਫਿਊਲ ਫਲੋਇੰਗ ਥਰੂ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਲੂਇਡ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਲੈਟ P1, A1, V1 ਐਂਡ H1 ਐਂਡ ਹੁਣ 2 ਸਿਰੇ ਆ ਬੱਚੇ ਪਾਈਪ ਦੇ 2 ਸਿਰੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈਪ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ P2 ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ A2 ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਏਗਾ V2 ਔਰ ਹਾਈਟ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ H2. ਸੋ ਬੀ ਦ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ. ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ. ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ A1 ਐਂਡ A2 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ V1 V2 is a volume this is velocity of not volume velocity of flow of liquid ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਬੱਚੇ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਐਂਡ H be the height H ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡ H be the height at point A and B ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਮਤਲਬ
ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜੋ ਟਰਮਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਆ ਥਿਓਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਵੋਲੀਅਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੋਲੀਅਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ A2 ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ A1 ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਆ P1 ਔਰ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਆ P2। ਇੱਧਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ V1 ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ V2। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਟ ਡਾਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਿਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਐਕਸ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ H1 ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ H2। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ A1 V1 P1 H1। V1 is a velocity, A1 area of cross section, P is pressure, H is a height. Similarly A2 is the area of cross section, P2 is a pressure, V is velocity and H is height। clear हो गया। सो बच्चे इत्थे तुसी लिख भी सकते हैं this is reference level, reference level जिथों असी reference ले रहे हैं। clear हो गया जी। चलो हुण बच्चे इत्थों असी पानी भेजिया और इत्थे तक पहुँच गया। सो इत्थे तक पहुँचिया कितना कम होया, किस तरीके नाल होया, असी वो चीज़ करांगे। सो असी लिखन लगे वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन पर सेकेंड by the fluid at A, by the fluid at point A। सो A पॉइंट के उपर बच्चे इत्थे पॉइंट A मान लो तो आ वाला पॉइंट B मान लो। A पॉइंट के उपर जिहड़ा वर्क डन होया वो किहदे इक्वल होएगा। सो बच्चे वर्क डन किहदे इक्वल हुंदा फोर्स इनटू डिसप्लेसमेंट। किहदे इक्वल हुंदा आ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डिसप्लेसमेंट। सो आपां डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। सो लिख दिता डिस्टेंस। हुण बच्चे प्रैशर, प्रैशर तुहाडा किन्ना सॉरी फोर्स किन्ना लग रहा बच्चे, फोर्स किहदे इक्वल हुंदा फोर्स इज इक्वल्स टू प्रैशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रैशर किहदे इक्वल हुंदा फोर्स ओवर एरिया। ठीक है। सो असी लिख सकते हैं फोर्स किहदे इक्वल आ प्रैशर इनटू एरिया। सो आप फोर्स की जगह ते बच्चे की यूज़ करन लगे प्रैशर इनटू एरिया। सो प्रैशर कितना लग रहा P1 और एरिया कितना लग रहा A1 मल्टीप्लाई। हुण डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना लग्या। सो बच्चे टोटल डिस्टेंस की जगह ते की लिखांगे। हुण ध्यान दिओ आ चीज़ बच्चे तुसीं लिखनी आ तां लिख भी सकदे आ वेयर डिस्टेंस। हुण बच्चे डिस्टेंस कितना लग्या, डिस्टेंस कितना लग्या वेलोसिटी इनटू टाइम, जिन्नी वेलोसिटी और जिन्ना टाइम लग्या। और वेलोसिटी कितनी है V1, टाइम कितना लग्या 1 पर सेकेंड। ठीक है। वेलोसिटी कितनी है 1 V1 और टाइम कितना लग्या 1 बिकॉज पर सेकेंड, क्योंकि आप एक सेकेंड की गल कर रहे हैं। यदा मतलब बच्चे डी की जगह से डिस्टेंस की जगह से असी की लिख सकते हैं V1। डन। सो आ टर्म बच्चे तुसीं इहदे साइड ते भी लिख सकते हैं या जिद्दां मैं एक सार लिखिया तुसीं इदां भी लिख सकते हैं। सो इत्थे लिख लो बच्चे डिस्टेंस, इनू दे दो इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो बच्चे साडा वर्क डन किहदे इक्वल आ गया, वर्क डन आ गया P1 A1 V1। क्लियर हो गया किस तरीके ना आया P1 A1 V1। सिमिलरली हुण बच्चे सिमिलरली सैकेंड पॉइंट की गल करांगे। सो इत्थे असीं लिख रहे हैं सिमिलरली वर्क डन पर सेकेंड बाय फ्लूइड एट पॉइंट B, बाय फ्लूइड एट पॉइंट B। इसका मतलब B पॉइंट से भी बच्चे कोई ना कोई वर्क डन होएगा ही होएगा, कोई ना कोई तो काम लगेगा ही लगेगा। सो उत्थे वर्क डन कितना होया। सो बच्चे आ W1 है। हुण वर्क डन सैकेंड ते कितना लग गया। सो प्रैशर कितना लग गया
P2 एरिया कितना लग गया A2 वॉल्यूम वेलोसिटी कितनी लगी V2 क्लियर हो गया जी। सो आ गई थोड़ा बच्चे एक वर्क डन W1 आ गया और एक वर्क डन W2 आ गया बट असी तो टोटल वर्क डन पता करना की पता करना टोटल वर्क डन। सो असी इत्थों स्टार्ट करते हैं सो इसकी जरूरत नहीं इस करके बच्चे मैं रब कर दिता अदरवाइज तुम जिदा बच्चे मैं नाल दी नाल बोल रही हाँ प्लीज़ अपने नोट्स के उपर नाल दी नाल लिखते जाओ ताकि थोड़ी प्रैक्टिस होंदी जाए। सो असी लिख रहे हैं नैट वर्क डन इट्स योर विश तुसी नैट वर्ड यूज़ करना कि टोटल वर्क डन यूज़ करना ठीक है दोनों वर्ड सही है। सो नैट वर्क डन के इक्वल होएगा W इज इक्वल्स टू P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। हुण बच्चे इनीशियल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਡਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਟ ਵਰਕ ਡਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ P1 A1 V1 ਮਾਈਨਸ P2 A2 V2 क्लीयर हो गया जी बच्चे इत्थे तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चे कमेंट सैक्शन दे विच तुसी लिख सकते हैं। हुण आ जाओ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अकॉर्डिंग बच्चे मैं अकॉर्डिंग पा के डॉट पा दिता तुसी इदा बिल्कुल नहीं लिखना एग्जाम के अंदर बच्चे शॉर्टकट दे कांटा वज जाता उत्थे मार्क्स तुहानूं नहीं मिलते। तुसी फिजिक्स की लैंग्वेज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गया बच्चे ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग बिकॉज ये वाले वर्ड्स तुसी शॉर्ट फॉर्म दे विच यूज़ नहीं कर सकते। मैं बिकॉज ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रही हाँ दैट इज़ वाई मैं शॉर्ट लिख रही हाँ तुसी शॉर्ट फॉर्म फेयर नोटबुक के उपर यूज़ या बोर्ड के पेपर के विच यूज़ नहीं कर सकते। नैक्सट आ जाओ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। हुण बच्चे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी तुसी लास्ट लैक्चर सुनिया होएगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी इज़ नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ना ही पेपर के आने के चांसिस वो है बहुत रेयर चांसिस है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कदे एग्जाम के पूछा जाए बट इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी बर्नौलिस थ्योरम के अंदर यूज़ होंगी इस करके असीं इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का पूरा आर्टिकल करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी बच्चे अगर तुहानूं याद आ तो साडा आंसर कितना आया सी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 साडा जिहड़ा एरिया इंटू जो वेलोसिटी आ वो किहदे इक्वल आ गया सी मास ओवर M ओवर रो दे। क्लीयर हो गया जी। सो आ बच्चे साडी इक्वेशन आई सी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी च। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 2 नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 2 हुण बच्चे 2 च पुट करन लगे तो वर्क डन कितना आएगा A1 V1 की जगह ते की पुट करन लगे P1 M डिवाइडेड बाय रो नैक्सट माइनस P2 V2 की जगह ते सॉरी नॉट A2 V2 की जगह ते A2 V2 की जगह ते की पुट करांगे P2 SH M डिवाइडेड बाय रो। क्लीयर हो गया जी। सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3। सो राजी इत्थों असी अपना टोटल वर्क डन जड़ा फाइंड आउट कर लिया। हुण अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बच्चे किहदे इक्वल सी प्रैशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। हुण असी की निकालना आ काइनेटिक एनर्जी ते पोटेंशियल एनर्जी। सो चलो बच्चे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हुण असी सॉल्व करन लगे हाँ काइनेटिक एनर्जी चाहे पोटेंशियल एनर्जी दोनों विचों कोई भी एक जिहड़ा तुसी सॉल्व पहला कर सकते हैं। सो इनक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की करन लगे हाँ इनक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। हुण पोटेंशियल एनर्जी कितना इनक्रीज होया रजी असी ओ टर्म फाइंड आउट करनी आ डन। सो किद्दां लिखांगे पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। जिन्नी बच्चे बी दे उपर फाइनल दे विच पोटेंशियल एनर्जी सी उह चों माइनस कर देनी इनीशियल वाली। जिहड़ा वर्क डन आ याद रखना बच्चे जिहड़ी वर्क डन आ नैट वर्क डन किद्दां कड्डीदा हमेशा इनीशियल चो फाइनल माइनस करीदा आ ठीक है वर्क डन पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही फाइनल विचों बी चों ए माइनस करना। बस इत्थे बच्चे मिसटेक करते अपनी कॉपी के उपर इत्थे स्टार बना के लिख लो कि जो वर्क डन निकालना तो ए विचों बी माइनस करना जो असी काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी करना तो बी चों ए माइनस करना। सो बी विच बच्चे हुण तुहाडी जिहड़ी आ पोटेंशियल एनर्जी किहदे इक्वल हुंदी है MGH। सो H की जगह की लिखांगे H2 और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितनी है MGH। सो H की जगह की यूज़ करांगे H1।
क्लीयर हो गया जी। आ साडी आ गई पोटेंशियल एनर्जी। हुण असीं निकालना इनक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इनक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो बच्चे इनक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी सेम इसी तरह तरीके नाल निकालांगे B माइनस A। सो काइनेटिक एनर्जी एट B माइनस काइनेटिक एनर्जी एट A। सो बच्चे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की हुंदा हाफ mv², क्योंकि वेलोसिटी आ v2 और हाफ mv1²। क्लीयर हो गया रजे? इत्थे तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर तुहानूं किसी तरीके का कोई भी स्टैप क्लीयर ना होवे, रिक्वेस्ट है कि पूछ लेना। हुण असीं करन लगे हां अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम। हुण बच्चे 3 इक्वेशनस सानूं चाहीदियां आ। सो इत्थे तक आपां लिखिया रहन दिंदे हां। लिखो इत्थे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अगेन मैं थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, बट तुसी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते बच्चे। वर्क डन के इक्वल होंदा जिहड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम आ, वर्क डन के इक्वल आ। असी 4th यूनिट फर्स्ट टर्म दे विच आ टर्म पढ़ी हुई आ। वर्क एनर्जी थ्योरम की कहंदा आ कि जिहड़ी टोटल एनर्जी आ वो ऐड कर देनी आ। सो टोटल इनक्रीज इन एनर्जी, टोटल इनक्रीज, सॉरी इनक्रीज लिखना है, टोटल इनक्रीज इन एनर्जी। जिन्नी एनर्जी बच्चे थोड़ी इनक्रीज होगी एनर्जी, टोटल इनक्रीज इन एनर्जी। बच्चे हुण इनक्रीज कितनी हुई आ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल कितनी आ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हुण बच्चे वर्क डन आ, वर्क डन साडा कितना आया आ रहा। सो असीं की लिखण लगे हां P1 m डिवाइडेड बाय रो माइनस P2 m डिवाइडेड बाय रो। आ वर्क डन बच्चे असीं इत्थे लिख दिता वर्क डन की जगह ते। क्लीयर हो गया? जो साडी 3rd इक्वेशन आई सी, ठीक है राजे, थोड़ा जिहा कैमरा सैट नहीं सी। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चे वर्क डन के इक्वल है टोटल एनर्जी इन टोटल इनक्रीज इन एनर्जी। सो टोटल इनक्रीज इन एनर्जी कितनी होएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हुण वर्क डन साडा कितना आ P1 m डिवाइडेड बाय रो, दैट इज इक्वेशन नंबर 3rd पुट कर दी। काइनेटिक एनर्जी बच्चे हुण काइनेटिक एनर्जी कितनी आ हाफ mv2² माइनस हाफ mv1² आ रही। सो इत्थे पुट करन लग्या। सो बच्चे हुण बिकॉज डायग्राम की जरूरत नहीं आ बच्चे, फिजिक्स के विच याद रखना डायग्राम बनाना भुल गए तो तुहानूं मार्क्स जिहड़े आ ओह नहीं मिलणगे। सो ट्राई करो कि पहला डायग्राम नीट एंड क्लीन बना लो। सो बच्चे काइनेटिक एनर्जी साडी कितनी आ हाफ mv2² माइनस हाफ mv1²। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ mgh2 माइनस mgh1। बच्चे आ इक्वेशन सबनों क्लीयर होगी कित्थों आई आ? जस्ट वैल्यूज पुट कीतियां वर्क डन दी, टोटल काइनेटिक एनर्जी दी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी दी। हुण ध्यान दिओ हर एक दे विच m आ, इस इक्वेशन च भी m आ, इत्थे भी m आ, m m m m। असीं की कीता सारी m कॉमन बाहर निकालती। की कीता कॉमन m बाहर निकालती। ब्रैकेट दे अंदर की रह गया हाफ v² माइनस हाफ v1²। बच्चे ब्रैकेट ओपन कर दो प्लस gh2 माइनस gh1। सिमिलरली इधरों m बाहर निकाल दो, ब्रैकेट के अंदर रह गया P1 ओवर रो माइनस P2 ओवर रो। आ गया जी। आ वाला m आ वाले m दे नाल की हो गया कैंसल आउट। सो कैंसल आउट हो गया क्योंकि हुण बच्चे तुसी +1 +2 दे विच आ, +1 दे स्टूडेंट्स आ। सो तुसी डायरैक्ट इस तरीके नाल भी लिख के आओगे तो तुहाडे मार्क्स जिहड़े आ कट नहीं होणगे। कॉमन सेंस आ कि m जिहड़ा असीं कॉमन कढ के कैंसल आउट कर दिता। क्लीयर हो गया? सो ऑलमोस्ट साडा आर्टिकल कंप्लीट होने वाला है। हुण की करना है 1 वालियां जड़ियां वैल्यूज़ एक पासे लै जाओ। सो 1 मतलब आ पिया आ P1 ओवर रो, आ वाला 1 बच्चे उधर जाएगा, आ वाला 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस हाफ v1²। आ वाला 1 बच्चे उधर जाएगा तो की हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस आ उधर जाके प्लस gh1। डन हो गया जी। हुण आ P2 वालियां एक पासे लै जाओ टर्म, जो आ बच्चे दूसरी तरफ जाएगा दिस इज P2 डिवाइडेड बाय रो
ਹੁਣ ਰਾਜੇ V2 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਆ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹਾਫ V2 ਸਕੁਅਰ, ਔਰ ਆ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਈ ਆ ਪਲੱਸ GH2। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਟਰਮ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, P1 ਓਵਰ ਰੋ P2 ਓਵਰ ਰੋ, ਹਾਫ V ਸਕੁਅਰ ਹਾਫ V ਸਕੁਅਰ, GH ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ 1 ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮ ਆ, ਉੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ P ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਰੋ ਪਲੱਸ ਹਾਫ V ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ GH ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਆ ਟਰਮ ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। ਡਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ। ਡਨ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਲਿਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਰਨ ਹੁੰਦਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 7th ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਡਿਫਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਫਲੋ, ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਡਿਫਾਈਨ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ, ਥਰਡ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 1 ਮਾਰਕਸ, 3 ਮਾਰਕਸ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਜੋ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਜੋ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।